Success Mantra. We shape future. Good morning everyone. My name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of The Hindu. Today is 7th of June 2024 and we'll start today's The Hindu with the first headline for the day, and the first headline for the day is Conduct Caste Survey Review Agnipath Scheme, says JDU to BJP. So what happened is that JDU is contributing, or JDU is the alliance party of BJP. Now Bharatiya Janata Party is taking support from JDU to form the government at the center. Now in exchange of that support, what JDU has demanded from Bharatiya Janata Party, that the caste survey should be conducted by the Indian government and there should be a review of Agnipath scheme. These are the two major demands which are put forward by the JDU, Janata Dal United. So basically these are the few demands which are being presented to the Bharatiya Janata Party by the JDU. And now one major problem with these demands is that the Agnipath scheme was the flagship scheme of Bharatiya Janata Party. Now the JDU wants the review of this particular scheme. So this is going to create a problem for Bharatiya Janata Party as well, because this was a kind of aspirational come a flagship scheme of Bharatiya Janata Party, and they were quite confident with this particular scheme. But the result has given them a setback, and they have to take the help of Janata Dal United and TDP for forming government at the center. Now, in exchange of that support, what JDU is demanding, that the Agnipath scheme should be reviewed and there should be a caste survey. Now moving on to the next important news headline for the day. So mostly in today's newspaper, majorly things are related to the Bharatiya Janata Party and the NDA alliance, and other statements by the various political leaders from the various political parties, because there is no absolute majority in the 18th Lok Sabha election. No party has got the absolute majority. BJP has become the biggest or the largest party with 241 seats at the center. BJP has become the largest party, but the actual number which was required by the constitution to form the government at the center was 272, and BJP fell short by 31 seats. So BJP has to form a government with taking help from various parties. Now these are the statements in today's newspaper which are given by various political leaders. So there is no need to pay heed to those statements, because those are just like philosophical and political statement. Those statements have no relevance for any examinations whatsoever. So we'll skip those news headlines and we'll move to the next headline. Rahul calls June 4 stock crash a scam, demands parliamentary probe. So alleging that Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah were directly involved in the June 4th stock market crash that wiped out 30 lakh crore of investors' wealth. Former Congress president demanded joint parliamentary committee investigation. So on the day when the election results were announced by the Election Commission of India, on 4th of June, the results were announced for the 18th Lok Sabha elections. And when there was, on 3rd of जून 2024 शेयर मार्केट परफॉर्म क्वाइट वेल, बट 4 जून को क्या हुआ, जब एक बार सबका पहले एग्जिट पोल जो आया था, एग्जिट पोल में बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलते हुए दिखाया गया था, बट जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना स्टार्ट हुआ तो उस बार क्या हुआ 4th ऑफ जून को, कि मार्केट में देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन. 5% तक का मार्केट जो था वो गिर गया. 5% तक मार्केट की जो टोटल वैल्यू थी, वर्थ थी ना, वो गिर गई. अब हुआ क्या कि इसमें क्लोज टू $400 बिलियन का, यानी क्लोज टू $350 बिलियन का लॉस हुआ इन्वेस्टर्स का. अब ये जो लॉस है एग्जैक्ट, ये बेसिकली वैल्यूएशन कम हुआ है मार्केट का इतना 30 लाख करोड़ रुपीस का. सो बेसिकली राहुल गांधी gave this particular statement that the event which took place in the share market on 4th of June, that particular crash, the crash that took place on 4th of June, that crash is a scam. And Rahul Gandhi is alleging that there should be an investigation by the joint parliamentary committee. JPC बिठाया जाना चाहिए और JPC इन्वेस्टिगेट करेगी कि 4th of June को जो मार्केट क्रैश हुआ था, was it a scam or not. So basically ये डिमांड किसने की है? ये डिमांड की है राहुल गांधी, जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है. नाउ मूविंग ऑन. Heal Pradesh in focus with Bab's victory from tribal Rajasthan region. Now this is another political news. Tamil Nadu BJP chief blamed for split with AIADMK. Now K. Annamalai,
who is the Tamil Nadu BJP chief, has been blamed for the split of Bharatiya Janata Party with AIDMK. So this is not important for us. Rajkot fire. High Court asked why the chief was not suspended. So basically, there was a fire. There was a fire in Rajkot at a gaming parlor. So gaming parlor में जब वो fire लगी तो उसके बाद क्या हुआ था कि कुल 27 लोगों की उसमें अपनी 27 लोगों की उसमें जान चली गई. फिर इससे क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने फिर इस पर्टिकुलर इवेंट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और उसमें बेसिकली उन्होंने अब जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया गुजरात हाई कोर्ट का, वो स्टेटमेंट ये है बेसिकली दैट व्हाई सिविक चीफ वाज नॉट सस्पेंडेड. सिविक चीफ को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन फॉर द डे. कांग्रेस वन 6 सीट इन नॉर्थ ईस्ट अलॉन्ग राहुल भारत जोड़ो रैली रूट. सो बेसिकली जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी नॉर्थ ईस्ट में, उस रूट में जो कुछ 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ रही थी, वो सारी 6 की 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कांग्रेस ने जीती हैं. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. हाउ अखिलेश यादव लेड अ कास्ट सीज टू हिंदुत्व टू थॉट बीजेपी इन उत्तर प्रदेश. सो बेसिकली इन उत्तर प्रदेश द मेजर setback for BJP is the Uttar Pradesh. Uttar Pradesh and Maharashtra are the two states which have given a major setback to Bharatiya Janata Party. Now what happened in Uttar Pradesh that the uh, sorry what happened in Uttar Pradesh that the Bharatiya Janata Party has got very few seats, like 37 seats in the state, and so basically this was a kind of a very big problem because in the last year's election they got close to 62 seats, so there was a reduction of 25 seats, and these seats were claimed by mainly Samajwadi Party, which has emerged as the third largest party after Bharatiya Janata Party and Indian National Congress. Samajwadi Party emerged as the third largest party in the country. Now the biggest problem with the BJP is that they have lost the seats of they have lost the seat of Ayodhya. Now in Ayodhya what happened is that they have constructed the Ram temple and they have so much confidence that no matter what we are going to win this particular seat, but they have lost that particular seat. So this was a kind of prestige issue for Bharatiya Janata Party because they were not able to win the Ayodhya seats, and which was that the winning of that particular seat was very important, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा था जो वो कहीं ना कहीं हिंदू सेंट्रिक था और राम मंदिर का उसमें एक बहुत बड़ा रोल था. राम मंदिर वाज इन द मैनिफेस्टो ऑफ भारतीय जनता पार्टी फॉर सो लॉन्ग. काफी लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम टेम्पल की बात की जा रही है, बट क्या हुआ कि ये लोग वहां पे मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्रेडिट लेती है कि हमने वो मंदिर बनवाया. सो बेसिकली क्या हुआ है कि वहां की भी सीट हार गई है भारतीय जनता पार्टी, और कैसे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बेसिकली जो उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी बीजेपी के फेवर में थी, इन सब चीज़ों के बावजूद जो करेक्ट प्रपोजिशंस थे उन लोगों के सामने रखे गए और लोगों ने भर भर के वोट किया समाजवादी पार्टी के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन फॉर द डे. Karnataka Minister Nagendra quits amid allegations of fraud. Not important for us. Another political news. Supreme Court order release of 137 cusecs of water to Delhi from Himachal Pradesh. Now this is one important headline because there has been very serious shortage of water in the Delhi. So the what did Supreme Court? What does Supreme Court did? That Supreme Court has basically ordered the Himachal Pradesh government to release 137 cusecs of surplus water from upstreams Himachal Pradesh to the Hathini Kund barrage in Haryana to Wazirabad barrage to quench Delhi's drinking and water crisis. So what does Supreme Court said? The Supreme Court on Thursday ordered the release of 137 cusecs of surplus water. Now this is important. 137 cusecs of surplus water from upstream Himachal Pradesh to the Hathini Kund barrage in Haryana into the Wazirabad barrage to quench Delhi's drinking water crisis. So basically to quench the water to quench the excuse me, to quench Delhi's drinking water crisis, what Supreme Court did that they ordered the Himachal Pradesh government to release 137 cusecs of surplus water to the state of Delhi to quench the thirst of peoples of Delhi. Now moving on. After NDA win in Andhra Pradesh, cases against Jagan Naidu sparked debate. Not important for us. All 11 candidates elected unopposed to the Karnataka Legislative Council. Not important for us. Gold smuggling accused gets bail in defamation case. Not important for us. Again, these are just another news headlines. We don't have to pay much heed to those news headlines. Now this is one important aspect of that we have to cover. Now health regulations need a base to top approach.
सो बेसिकली इंडिया में क्या हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में एक हॉस्पिटल में फायर लगी और उसमें 7-8 बच्चों ने अपनी जान खो दी थी। वो न्यूली बॉर्न बेबीज, जो न्यूली बॉर्न बेबीज, यंग इन्फेंट बेबीज थे, उनकी जान चली गई। दैट्स व्हाट इज वेरी ट्रैजिक एक्सीडेंट, क्योंकि उन लोग की आग में जान गई थी। तो फिर बेसिकली कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग के सामने उठ के आए कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे हेल्थ रेगुलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे हेल्थ रेगुलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन वाज कि अगर इतने सारे हेल्थ रेगुलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी शॉर्ट कमिंग क्यों रह जा रही है कि देयर वाज अ हॉस्पिटल फायर, देयर वाज अ फायर इन द हॉस्पिटल, इन दैट पर्टिकुलर फायर 6 to 7 बेबीज लॉस्ट देयर लाइव्स। अब ऐसी फायर हो क्यों रही है, ऐसी आग लग क्यों रही है? क्या फायर कंप्लायंस नहीं था, या अदर कोई नेसेसरी कंप्लायंस थे या फॉर्मेलिटीज थी जिनको पूरा नहीं किया गया था? So these are the few important questions related to this particular topic, and we will deal each and every question in very detail. Now moving on. In the last week of May, an incident of devastating fire in a private neonatal care nursing home in New Delhi shook us all. Political parties began a blame game and the media coverage was intense, going overboard and reporting incorrectly that a number of nursing homes in Delhi functions without a license. Yet the incident seems to have been forgotten by most even as the parents grieve. Such tragedies are often followed by a question of who should be blamed, completely missing the point that these are almost always the outcome of a systematic failure. In this case, the failure of healthcare regulations. So basically, the event or the incident which happened in Delhi, basically वो क्या था? वो basically एक hospital में आग लगी, that is fine. That is very fine कि hospital में आग लगी. But one important thing is क्या बेसिकली जो वो आग लगी है वो एक सिस्टम का फेल्योर है, वो पूरे सिस्टम एज अ होल का फेल्योर है। क्यों? अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब रेगुलेशन बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता है। रेगुलेशंस का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट इज द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दिस पर्टिकुलर साइड कि हमने रेगुलेशंस बना दिए हैं, दिस इज अप टू द हॉस्पिटल कि वो रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच शुड भी हमने रेगुलेशंस बना दिए हैं एंड वी विल मेक श्योर कि हर एक हॉस्पिटल इंडिया में उस रेगुलेशन को फॉलो करे, अदरवाइज देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ मूविंग ऑन, द सब्जेक्ट ऑफ रेगुलेशन हैज ऑलवेज बीन द इंटरेस्ट टू हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर्स, बट आर्ग्यूबली इज वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट इन इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम. So now this particular author is, so what this particular author is trying to say is that the weakest point of India's healthcare system is that the lots of regulations that we had a lot of regulations, but none of them are followed carefully. So this is the main problem of India. This is the weakest point in our healthcare system, that we don't follow regulations very seriously. Now moving on. Now moving on to the next important point for the same news. In the same news, the subject of regulation has been. Now moving on. The other challenge is unrealistic healthcare quality standards. Government at every level in India, national and states, are known to draft policies which are near perfect. So there is no shortcoming in drafting when it comes to drafting of different regulations. Those regulations are always top notch. अब वो बेसिकली रेगुलेशंस होती तो टॉप नॉच है, ब्लैक एंड वाइट में दे आर वेरी अनरियलिस्टिक, बट वो बहुत अनरियलिस्टिक रेगुलेशंस होती हैं। वो होती तो टॉप नॉच है, एकदम परफेक्ट होती हैं, बट अनरियलिस्टिक होती हैं। क्यों? इंडिया में जो जैसा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है और जैसे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इज इट प्रैक्टिकेबल टू इम्प्लीमेंट दोज रेगुलेशंस? ये चीज़ एक सामने आ जाती है कि नियर परफेक्ट या क्लोज टू परफेक्ट आपने रेगुलेशंस बना दी, बट अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके के रेगुलेशंस को सपोर्ट ही नहीं करेगा तो आप फिर वो रेगुलेशन बना करके उसका फायदा भी क्या है? नाउ मूविंग ऑन. One such case is the Clinical Establishment Registration and Regulation Act 2010, enacted 14 years ago, but government in discussions with the stakeholders have realized that many provisions in the act are impossible to implement. So basically what happened is that the government has formed one such act which was not implemented properly or effectively. The Clinical Establishment Act 2010, this particular act was passed a decade and a half ago. This particular act was passed 14 years ago, but this particular act has not been implemented yet. Why? Because the government in discussion with stakeholders have realized that the many provisions of this Clinical Establishment Act 2010 are impossible to implement. So basically what is the problem? The question is the people who are framing these regulations, the persons who are drafting these regulations are not very serious about it. Now what's the problem? कि इन्होंने ना बहुत ही अनरियलिस्टिक तरीके की regulations को फ्रेम किया है. अनरियलिस्टिक regulations को फ्रेम करने का डिसएडवांटेज क्या है कि जब ऑन ग्राउंड आप जा करके उससे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास वैसा रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम उन रेगुलेशंस को सपोर्ट कर पाएं. नाउ मूविंग ऑन. Another example is the Indian Public Health Standards, or IPHS, drafted by the government for its own healthcare facilities and proposed and essential in order to deliver quality health services. The IPHS were first released in 2007 and have been revised twice since then. Yet in 17 years of existence, only 15 to 18% of government primary healthcare facilities in India meet the government's own
Yep. Only 15% to 18% of government primary health care facilities in India meet the government's own standards. So now this is another important point. And now what is this point? कि इंडिया में क्या हुआ था कि एक रेगुलेशंस को ड्राफ्ट किया गया था, रेगुलेशन ड्राफ्ट हुई थी ये 2007 में पहली बार इन्हें रिलीज किया गया था। नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन वाज इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। अब बेसिकली जो ये आईपीएचएस स्टैंडर्ड्स या जो गाइडलाइंस रिलीज की गई थी, इनका बेसिकली काम क्या था? ये बेसिकली जो गवर्नमेंट के खुद के हॉस्पिटल होते हैं, जो उनकी खुद की हेल्थ केयर अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं, उनके लिए बेसिकली ये रेगुलेशंस ड्राफ्ट की गई थी। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आफ्टर द 17 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, इन 17 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, इंडिया में सिर्फ 15 टू 18% स्टेट्स ने अभी इस पर्टिकुलर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया। 18% स्टेट का मतलब हुआ सिर्फ इंडिया में 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट किया। एंड द सैड पार्ट इज कि इन गाइडलाइंस को एग्जैक्टली 17 ईयर्स पहले ड्राफ्ट किया गया था। नाउ मूविंग ऑन, देयर इज अ बाइनरी परसेप्शन दैट व्हेन इट कम्स टू अधेयरिंग टू द रूल्स, द गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर ऑलवेज डज बेटर and that the private sector always violates them. The fact is that India has mixed healthcare system. We have a mixed healthcare system. What is a mixed healthcare system? Mixed healthcare system है basically गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का दोनों को कंट्रीब्यूशन रहता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम, वेयर प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड प्रोवाइडर डिलीवर 70% ऑफ आउट पेशेंट एंड 50% ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड सर्विसेज। सो इन इंडिया हमारे कंट्री में मिक्स्ड मिक्स हेल्थ केयर सिस्टम की बहुत नीड भी है। नीड क्यों है? क्योंकि हमारे कंट्री में जो मोस्टली लोग हैं वो इसी पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्कार्सिटी अभी भी है इंडिया में। जैसे हमारी पॉपुलेशन है 1.45 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो जितना भी मेजर जो इसका स्ट्रेस है, मेजर जो प्रेशर है हमारी इस पॉपुलेशन की और इनके हेल्थ केयर का, ये किस पे रहता है? मोस्टली रहता है ये प्राइवेट सेक्टर पे। इसीलिए हमारी कंट्री की नीड ऑफ द आर है मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम, बट वो एकदम रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। When it comes to healthcare regulation, there seems to be an unfairness and overzealous attempt to enforce the regulations in the private sector. In 2017, two separate but near identical incidents in two large hospitals in Delhi had allegedly declared newborn infants as dead. They were alive. This resulted in a temporary suspension of license in the case of private hospital, while in the case of the government hospital, there was just the setting up of an inquiry committee. सो ना बेसिकली हुआ क्या कि इंडिया में बेसिकली अगर किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक होती है प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो उसमें बेसिकली गवर्नमेंट बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है, हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन सब कुछ करती है। बट अगर वही सिमिलर टाइप का इंसिडेंट अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है, अब गवर्नमेंट इंक्वायरी कमेटी फॉर्म कौन करता है? गवर्नमेंट, हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, तो उसमें बहुत चीज़ें उतना ल्यूसेट तरीके से उतना क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। अब बेसिकली इस चीज़ को कंपेयर क्यों किया जा रहा है कि दो सिमिलर इंसिडेंट हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल का आपने टेम्परेरी टाइम के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, बट आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ क्या किया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ आपने कुछ नहीं किया, यू जस्ट सेट अप एन इंक्वायरी कमिटी, दैट्स इट, दैट्स इट। व्हाई? बिकॉज अब उस हॉस्पिटल को मैनेज करने की, रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। सो इसलिए जब गवर्नमेंट पे बात खुद पे आती है ना, तो वो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थोड़ा सा बस बोलेंगे कि हमने कमेटी फॉर्म कर दी है, चीज़ें हो रही हैं, और कुछ टाइम बाद जैसे दिल्ली में ये आग लगी हॉस्पिटल में, 7 बच्चे इसमें जल गए, हम लोग ये भूल गए, हम लोग ऐसी भी न्यूज़ आइटम्स को भूल जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, मोस्ट प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक्स हैव ऑफन फ्लैग्ड द इशू ऑफ अप्रूवल्स बीइंग डिलेड बाय द अथॉरिटीज फॉर मंथ्स इवन बिफोर दीज facilities apply for renewal well in advance. So basically there was another important issue which was raised by the प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और ये इशू क्या था कि जब इन लोगों ने बोला बेसिकली कि जब हम लोगों का किसी भी तरीके का कोई लाइसेंस या जब टेन्योर उसका ख़त्म होने वाला होता है, तो हम लोग काफ़ी एडवांस में, कई बार 3-4 महीने पहले हम लोग अप्रूवल के लिए या लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई कर देते हैं। बट 3-4 महीने क्या बहुत सारा टाइम निकल जाता है और उन लाइसेंसेस को अप्रूव ही नहीं किया जाता है। सो बेसिकली ये अप्रोच जो है ना गवर्नमेंट मशीनरी का, कि जो अप्रूवल को इतना हम लोग डिले करते हैं, इसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को रोबस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ अब बेसिकली हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमें देखनी है। अफोर्डेबल केयर इज़ वन नीड। इंडियाज पॉपुलेशन इज़ 1.45 बिलियन, और इस 1.45 बिलियन पॉपुलेशन में ऐसा नहीं कि लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, लोग बिल्कुल बीमार पड़ते हैं। बट उन जो लोग बीमार पड़ते हैं उसमें से कैसे इतने लोग हैं जिस जो बीमारी उनको होती है
उसका जो इलाज होता है उसको वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो इंडिया में बेसिकली अफोर्डेबिलिटी इज द बिगेस्ट इशू। जेनेरिक मेडिसिन, ये सारी चीज़ें क्यों हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसीलिए लेकर के तो आ रहे हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग अफोर्डेबल बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन को हम लोग अफोर्डेबल बना सकें। नाउ द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी, एज देयर इज एवरीथिंग फ्रॉम सिंगल डॉक्टर क्लिनिक, स्मॉल नर्सिंग होम्स एंड मीडियम साइज हॉस्पिटल to large corporate hospitals. Single doctor clinics and small nursing homes are often the first point of contact for access and utilization of health services in India by middle income and low income population. So what happened in India कि इंडिया में जब भी कोई बीमार होता है, so मिडिल क्लास या लो इनकम फैमिली में, तो बेसिकली कॉमन अप्रोच क्या होता है, हम कभी डायरेक्टली किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाते, हम पहले किसी क्लिनिक में जाते हैं जहाँ पे एक कोई डॉक्टर बैठता है, हम लोग पहले उसको दिखाते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, दे डिलीवर अ लार्ज शेयर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट ऑफ द बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि बेसिकली जो ये छोटे डॉक्टर्स होते हैं, जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक होते हैं, ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं जहाँ पे जो पेशेंट होता है वो हेल्थ केयर सिस्टम में जाकर के इन्वॉल्व होता है या एंटर करता है। The single doctor clinics and nursing homes play a key role in health services delivery in India and make services accessible and affordable. Now basically ये जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स होते हैं, इनका एडवांटेज क्या है? इनका एडवांटेज बेसिकली ये है कि आप अगर बड़े हॉस्पिटल्स काउंट करने लग जाएं इंडिया में, तो आप इजीली बड़े हॉस्पिटल्स को काउंट कर सकते हैं। बट अगर आप सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स को काउंट करने लग जाएं, तो ना आप अपने शहर में भी आपको बहुत से ऐसे हॉस्पिटल मिल जाएंगे। आप लोग जिस भी शहर में रहते हैं, जस्ट टेक अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल, जस्ट टेक अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल, एंड व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? कि आप लोग बस अपने शहर में इतना इमेजिन करिए कि आपके शहर में बड़े हॉस्पिटल कितने हैं और छोटे वन डॉक्टर वाले जो क्लिनिक होते हैं वो कितने हैं। सो बेसिकली जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक होते हैं, वो बेसिकली उनका जो रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लो इनकम और लो एजुकेशन लेवल के साथ में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ yet the tragic incident in Delhi is not something which should be allowed to pass without calm assessment and some concrete plans. First, ensuring quality of health services is essential and the joint responsibility of all stakeholders. So basically हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, वही चीज़ ये है कि अगर कहीं पे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में कोई किसी तरीके की दिक्कत हो रही है, तो बेसिकली दिक्कत अगर हो रही है तो उस दिक्कत का बेसिकली एक सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। अब सोल्यूशन क्या है यहाँ पे कि सारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं जिस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल ये अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए कि हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक स्टेक होल्डर पे रख दें। अगर हम लोग ऐसी अप्रोच रहेगी हम लोग की कि जब हम लोग सारा का सारा जो ओनस होगा किसी एक स्टेक होल्डर पे अगर शिफ्ट करेंगे, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कभी भी उतना रोबस्ट हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें फिर एक ही स्टेक होल्डर को देखनी होंगी। नाउ मूविंग ऑन, second, in regulatory aspect, what is possible for large corporate hospitals may not be feasible for smaller clinics and nursing homes without escalated cost. So basically क्या है कि जो बड़े बड़े corporate hospitals होते हैं वो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर लेते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द फंड्स, उनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, इस वजह से वो लोग क्या कर लेते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं वो इतना अपना रोबस्ट सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम वो लोग डेवलप कर लेते हैं। बट इंडिया की जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो बड़े हॉस्पिटल्स पे नहीं, जो छोटे स्मॉल क्लिनिक्स होते हैं, सिंगल डॉक्टर क्लिनिक होते हैं, उन पे डिपेंडेंट है। तो हमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रोबस्ट करना है, क्योंकि जब तक हम लोग जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक रोबस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे रोबस्ट कर पाएंगे? क्योंकि जो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जब पेशेंट जा करके हेल्थ केयर सिस्टम में एंटर करता है, वो आपके सिंगल डॉक्टर क्लिनिक ही होते हैं। मोस्टली केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक ही होते हैं। आप क्या पहले किसी सिंगल डॉक्टर क्लिनिक में जाकर के दिखाते हैं, फिर आपको सिंगल डॉक्टर क्लिनिक या जो डॉक्टर होता है वो सजेस्ट करता है कि अब आप जाइए किसी बड़े हॉस्पिटल में। अगर कोई सीरियस दिक्कत होती है तो यही सजेस्ट किया जाता है ना कि अब आप जाइए किसी बड़े डॉक्टर में। तो वो बड़ा हॉस्पिटल तो तब भी जाकर के सेकंड स्टेप पे आया ना, पहला आपका प्राइमरी स्टेप पे क्या है? छोटा हॉस्पिटल। इसीलिए हमें ये चीज़ देखनी है कि कैसे हम छोटे हॉस्पिटल जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है इनका सिस्टम हम लोग कैसे रोबस्ट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेटिकुलस पॉइंट जिसे हमें देखना है। नाउ मूविंग ऑन, सो बेसिकली एक चीज़ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में और बोली गई है कि हम लोगों को बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए कि किसी भी काइंड की तो मतलब कुछ सब्सिडी देनी चाहिए। जो ये छोटे हॉस्पिटल्स हैं या जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है, इन्हें किसी तरीके की सब्सिडी देनी चाहिए। अब सब्सिडी क्यों देनी चाहिए? जस्ट टू मेक द एंटायर हेल्थ सिस्टम वेरी रोबस्ट, हम इन लोगों को क्या देना चाहिए? हमें इन लोगों को क्या देना चाहिए? इंटायर हेल्थ केयर सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए हमें इन्हें सब्सिडी देना चाहिए, हमें इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दैट जो वहाँ के पेशेंट है, जो वहाँ पे पेशेंट जो डिपेंडेंट है उन हॉस्पिटल्स पे, जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स हैं, वो बेसिकली एक बहुत ही रोबस्ट और इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सिस्टम का फायदा ले सकें। नाउ मूविंग ऑन,
in the fire tragedy in Delhi, we should not just treat the symptoms but also aim to find the eliminate the root causes. So basically क्या बोला गया है कि जो दिल्ली में फायर लगी थी इसमें बेसिकली हमें सिम्टम्स को नहीं, हमें रूट कॉज को देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या था, और उस रूट कॉज का हमें फिर अकॉर्डिंगली एक सोल्यूशन डिराइव करना चाहिए. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है. अब बेसिकली जो हमारी अलग अलग हेल्थ पॉलिसीज हैं उनके अंडर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं वो सारी चीज़ें कंक्लूजन पार्ट में लिखी हैं, विच इज़ रेलेवेंट बट नॉट दैट रेलेवेंट, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम लोगों ने उन्हें पहले ही कवर कर लिया कि कैसे हमारे कंट्री में अलग अलग तरीके की एकदम हाईटेक रेगुलेशंस को फ्रेम किया गया. बट वो रेगुलेशंस के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि वो रेगुलेशन जो है बेसिकली आपकी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हैं. वो नियर परफेक्ट तो हैं, वो रेगुलेशंस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी दिक्कत है. और कैसे हमारे इंडिया कंट्री में, हमारे कंट्री इंडिया में जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है इन लोगों का कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और हम लोग कैसे सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि जो हमारे कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है हेल्थ केयर सिस्टम के साथ में वो होता है बेसिकली आपका सिंगल डॉक्टर्स क्लिनिक में. ठीक है, सो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. So the return of social justice and Marathi Ashmita. Now what happened in the Maharashtra is a very unfortunate for Bharatiya Janata Party. I'm not a supporter of Bharatiya Janata Party either. But what happened in, I'm just putting forward a view that what happened in Maharashtra is very unfortunate for Bharatiya Janata Party. Now, why it's unfortunate for Bharatiya Janata Party? Because in the election that happened in 2019, Bharatiya Janata Party was able to secure 23 seats in Maharashtra only. But in the 2024 election, they have managed to secure only 9 seats, which is a reduction of 40%. So there is a reduction of 60% reduction हो गया, 60% reduction, which means that the people of Maharashtra are not liking the Bharatiya Janata Party, or there has been some sort of miscommunication. Now, अब इस पर्टिकुलर चीज़ का इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे लेकर के हमें समझना होगा कि देयर वाज अ मिड टेन्योर टर्मोइल हुआ था महाराष्ट्र में. उसमें हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो कोalition था वो लोग वहाँ पे रूल कर रहे थे. बट फिर हुआ क्या कि एकनाथ शिंदे, एक जो शिवसेना के लीडर थे, उन्होंने अपनी एक अलग फैक्शन रेडी किया और वो बहुत सारे एमएलएस को लेकर के चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास में. और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि उन्होंने शिवसेना के साथ में अपना अलायंस जो था उसको ख़त्म कर दिया. और उन्होंने जो दूसरा फैक्शन था एकनाथ शिंदे का, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रियल शिवसेना बोल दिया था, उसके साथ उन्होंने अपना कोalition किया और कोalition के बाद अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की. अब बेसिकली इन लोगों को जो डिसएडवांटेज हो रहा है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में 2024 जनवरी में महाराष्ट्र सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बिल 2024 पास किया गया था. इस बिल को पास होने के बाद बेसिकली क्या किया गया था कि मराठा कम्युनिटी को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में डाल दिया गया था, एससीबीसी में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में डाल दिया गया था. और उसमें क्या किया था, बेसिकली 10% का रिजर्वेशन दिया गया था मराठा कम्युनिटी को. नाउ अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और हमें याद रखनी है. और उस टाइम पे मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे जो छोटे लीडर्स है, छोटे पार्टी से उनको प्रेशराइज किया था कि कैसे भी करके वो लोग बेसिकली महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते. और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में देयर हैज सम प्रॉब्लम विद भारतीय जनता पार्टी. देयर इज नो प्रॉब्लम विद द भारतीय जनता पार्टी इन महाराष्ट्र. व्हाट हैपेंड इज that BJP became very overconfident in Maharashtra, and they cannot take Maharashtra taken for granted because Maharashtra has been a hub for भारतीय जनता पार्टी. हुआ है RSS का जो मेन डोमिनेंस है वो महाराष्ट्र में दिखता है क्योंकि नागपुर में क्या RSS का हेड ऑफिस भी है. सो बेसिकली लोग रिलेट करते हैं भाजपा और RSS को. बट इस पर्टिकुलर इलेक्शन में एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि जैसे ईवीएम में कोई गलती नहीं है, वैसे आरएसएस ने इस बार के इलेक्शन में एटलीस्ट बहुत कम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की. इसी वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से उसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को बहुत क्लियरली देखने को भी मिला है. और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व थी. महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसीलिए महाराष्ट्र से लोग इतना डिसअपॉइंटेड भी हैं. अब ये जो पर्टिकुलर उनकी डिफीट हुई है महाराष्ट्र में, दिस पर्टिकुलर डिफीट हैज़
has got a, भारतीय जनता पार्टी इन सो मच ऑफ टेंशन. अब ये टेंशन हो क्यों गई है? बेसिकली भारतीय जनता पार्टी इज नॉट एबल टू अचीव द मेजोरिटी ऑन इट्स ओन. तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या गलती रह रही थी. सो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डील करी हैं. दिस इज अनदर पॉलिटिकल आर्टिकल, बट अगेन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वाज गिवन in the editorial section, so we have to cover this particular article, the return of social justice and maratha ashmita. maratha ashmita. So basically ये आपका आर्टिकल नंबर 2 था जो एडिटोरियल से रिलेटेड था. ठीक है. इसमें बस इतनी चीज़ें थी कि महाराष्ट्र ने कैसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया इस बार के इलेक्शंस में, और बीजेपी को सिर्फ वहाँ से 9 सीट मिल पाई. 2019 में 23 सीट्स थी. सो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 60%. ना अब बेसिकली जो आज का द हिंदू है वो मोस्टली कवर कर रहा है बहुत सारा इलेक्टोरल डेटा. इलेक्टोरल डेटा कैसा कि किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ पे कैसे वोट हुई. सो नाउ वी विल सी कास्ट एंड कम्युनिटी बेसिस पे किस किस पार्टी को कैसे कैसे वोट मिली, फिर विलेज टाउन सिटीज़ में किस किस पार्टी को कितना वोट मिला, कितना डिक्लाइन हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें डील की गई हैं. The elections changed across different phases. While the BJP altered the strategy phase-wise, the results suggest that regional issues, local dynamics, and the appeal of candidates played a more significant role in determining outcomes. The BJP's pro-rich coup becomes moderate. BJP's sustained loss in women's vote. So BJP को इस बार women ने कम वोट दिया. Party more than candidate holds sway over voters. So basically सोशल वेलफेयर स्कीम्स का क्या क्या असर पड़ा है, और कैसे किस तरीके से जो कैंपेनिंग हो रही थी उसने कैसे पॉलिटिकल मतलब सॉरी जो इलेक्टोरल रोल पे जो वोटर्स थे उनको कैसे अफेक्ट किया, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना कैंपेन था. अब बेसिकली जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहली न्यूज़ हेडलाइन कवर की थी कि देयर वाज एलिगेशन बाय दी राहुल गांधी. अब वो एलिगेशंस किस पे हैं? वो एलिगेशन बेसिकली इन्होंने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि जो 4 जून जिस दिन इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था उस दिन जो मार्केट क्रैश हुआ था 5% का, बेसिकली दैट वाज अ मार्केट स्कैम. सो बेसिकली इस पे उन्होंने क्या किया था राहुल गांधी हैज डिमांडेड अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन. दैट इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड बाय अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. दैट द इवेंट व्हिच टुक प्लेस ऑन द पोल रिजल्ट अनाउंसमेंट डे, उस दिन वो जो भी चीज़ें हुई थी दैट वाज अ मार्केट स्कैम. सो बेसिकली इसका रिस्पॉन्ड अब किसने किया है? पीयूष गोयल ने. और पीयूष गोयल ने बोला है कि दीज एलिगेशंस आर टोटली बेसलेस. दीज एलिगेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट स्कैम आर टोटली बेसलेस. नाउ मूविंग ऑन. अब बेसिकली 2024 के इलेक्शंस में टोटल टर्नआउट कितना रहा है? वो रहा है 65.79%. ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डेटा रिलीज किया है दैट देयर हैज बीन टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ 65.79% वोटर्स ने इस पर्टिकुलर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है. 2019 में जो इलेक्शन था वो था उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 67.4% लोगों ने. सो देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ 1.6% फ्रॉम 2019 टू 2014. 2019 में जो 17th लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें 67.4% वोटर्स ने वोट कास्ट किया था अपना बल, और वेरस इन द 2024 18th जनरल लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ है? 65.79% लोगों ने अपने वोट को कास्ट किया. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड इज दैट कि जो ये वोट्स का जो डेटा निकल के सामने आया है 65.79% टर्नआउट, इसमें पोस्टल बैलेट्स को अभी ऐड नहीं किया गया. पोस्टल बैलेट्स को वो ऐड नहीं किया गया. अब लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा टर्नआउट रहा है 84%, फॉलोड बाय आसाम 81%. द लोवेस्ट टर्नआउट वाज रिकॉर्डेड इन बिहार 56.91% एंड उत्तर प्रदेश 56.92%. So Uttar Pradesh and Bihar has these are the bottom two states जहाँ पे वोटर टर्नआउट सबसे कम रहा है. सबसे ज़्यादा कहाँ रहा है? सबसे ज़्यादा रहा है लक्षद्वीप में 84%, दूसरे नंबर पे आसाम में 81%. और बॉटम टू में कौन कौन से स्टेट्स हैं? बॉटम टू में है उत्तर प्रदेश बिहार 56.19%, और फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश 56.92%. दीज आर द बॉटम टू परफॉर्मिंग स्टेट्स. अब बीजेपी के लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा, जो उत्तर प्रदेश में इतना वोटर टर्नआउट कम रहा है इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है. अब ये चीज़ नहीं कही जा सकती, वी डोंट हैव प्रूफ फॉर दिस, कि बेसिकली जो लोग वोट देने नहीं गए वो सारे बीजेपी के सपोर्टर्स थे. तो बीजेपी इज ट्राइंग टू गेट अ डिफरेंस. बेसिकली बीजेपी इज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि उसे सीट्स कम क्यों मिली हैं. तो बेसिकली वो लोग इस डेटा को भी यूज़ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वोटर टर्नआउट था वो बहुत कम था और हमारे ही सपोर्टर्स हमको वोट करने नहीं गए, इसीलिए हमें सीट्स कम आई हैं. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. सबसे ज़्यादा वोट्स पड़े थे, ये याद रखिएगा, 5.79% वोटर टर्नआउट इस बार रहा है. 2019 में 67.4% था. सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई कहाँ पे? सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के बाद असम में. बॉटम टू में कौन से स्टेट्स हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश. बिहार में 56.19% वोटर टर्नआउट रहा है और उत्तर प्रदेश में 56.92% रहा है. बेसिकली ये नेशनल एवरेज से इट इज़ 9% लेस. जो नेशनल एवरेज है वो 65.79% का है और यूपी और बिहार में ये नंबर 57% से भी
भी कम है। तो बेसिकली नेशनल एवरेज से भी इन दो स्टेट्स में पोलिंग कम हुई है। नाउ दिस इज अनदर news related election related issues. Kangna Ranawat has been slapped by a CISF constable at Chandigarh airport. Not important. Bengal poll clash victims can file complaints with DGP, says the High Court. So basically कोलकाता हाई कोर्ट ने एक अभी रिसेंट स्टेटमेंट इशू किया। उस स्टेटमेंट में बेसिकली ये बोला है कि जो पोस्ट पोल वायलेंस के केसेस आ रहे थे वेस्ट बंगाल में, अब वो लोग अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट डीजीपी के पास फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। Parliament breeds Delhi police to file charge sheet. India is now second biggest foreign threat to Canadian democracy, says report. A parliamentary committee reports in Canada has described India as the second biggest foreign threat to the country's democracy. That revelations of the report added to the negative state of the bilateral relations between the two countries, which have been caught up in diplomatic spat since the June 2023 killing of a pro-Khalistani ideology in Surrey, British Columbia. So now the relations between the relation between the Canada and India has not been so good, and was the reason behind this particular soiling of relationships between India and Canada. So basically एक प्रो खालिस्तानी लीडर था जिसकी डेथ के एलिगेशंस कनाडा ने लगाए इंडिया पे। तो जब से वो एलिगेशंस इंडिया पे लगे हैं उसके बाद क्या हो गया कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत सॉइल हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई है कनाडा में और उन्होंने बोला है कि इंडिया इज नाउ द सेकंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट। इंडिया को उन लोगों ने क्या बोला है कनाडा ने, दैट इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट टू कैनेडियन डेमोक्रेसी। दिस इज द बिग स्टेटमेंट गिवन फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। हमारी कंट्री के लिए स्टेटमेंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री भी एक बजिंग इकोनॉमी है, हमें अभी बहुत ग्रो करना बाकी है। देयर इज अ लॉट टू बी डन, अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमारे कंट्री में। और उस इन सारी चीज़ों के बीच में क्या हुआ है कि कनाडा ने अपने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रिलीज की और उस रिपोर्ट में बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि दैट इंडिया इज नाउ द सेकेंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट। इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से कनाडा के लिए इंडिया दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन थ्रेट है कैनेडियन डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, दिस इज द बिग स्टेटमेंट, हमें इस चीज को याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। Now we are coming to the finance, business related news. Food price rise likely speed up in May. ECB cuts interest rates even as inflation flies. Local air passenger traffic rose 5.1% in May. TVS, no, not important. India must spend up to 385 billion on RE Global. So basically India has to invest a minimum of $385 billion before 2030. अभी 2030 तक हमें बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पे $385 बिलियन का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली एक प्लेज, हमारी कंट्री का एक टारगेट है कि हम लोग कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को 45% तक कम कर देंगे 2030 तक, और हम लोग नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे। कब तक हम लोग नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे? बेसिकली नेट कार्बन जीरो हम लोग कब तक हो जाएंगे? नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे हम लोग 2070 तक। Now moving on. So basically इंडिया में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें हम लोग HNWI कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनकी वेल्थ जो है वो कितनी बड़ी है? 12%। कितनी बड़ी है? 12%, 12.2% in 2023 by versus 2020. So there is an increment of 12.2%। अब ये 12.2% इंक्रीमेंट हुआ किस बेस ईयर से? 2022 से। इंडिया में जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनमें 12.2% का इंक्रीमेंट है। नाउ मूविंग ऑन। Now, there's chip maker, the international chip maker Nvidia has basically surpassed Apple to become the most valuable company. Now, the most valuable company. A rally that has propelled US equities to record highs increasingly rest on red hot chip maker Nvidia and a handful of other giant stocks, reviving concerns about 60% of S&P's total. Nvidia was on Thursday became the world's second most valuable company, following over 140 in this country. So basically, Nvidia has become the second most valuable company in the world after their shares
have gained almost 147% in the year 2024. So this had helped a lot. This helped a lot Nvidia in achieving, or in this helped a lot Nvidia in becoming the second most valuable company in the world. Now moving on. Russia defends OPEC plus oil peg says may tweak if needed. Not important. Uh, International Spain to join South Africa's Gaza case at top UN court. So this is another important news that basically हम लोगों ने पढ़ा था कि एक न्यूज़ कवर की थी कि that South Africa went to International Court of Justice against Israel, and the statement which was given by South Africa, or the allegations which were made by the South Africa, that the Israel is in the violation of Genocide Convention 1948. अब basically ये जो कंप्लेन फाइल की थी, साउथ अफ्रीका ने फाइल की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। अब स्पेन ने भी क्या किया है, स्पेन ने भी बेसिकली इसको ज्वाइन कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करना होगा, हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको अभी कुछ दिन पहले की बात है जब स्पेन ने क्या किया था, पैलेस्टीन का स्टेटहुड एक्नॉलेज किया था। सो बेसिकली स्पेन अब क्या हो गया कि स्पेन अब पहली कंट्री बना है, स्पेन बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन यूरोपियन यूनियन to ask United Nations Court for permission to join South Africa's case accusing Israel of genocide in Gaza. So basically Spain became the first country in the European Union जिसने परमिशन ली है यूएन कोर्ट से, टॉप यूएन कोर्ट से, कि वो साउथ अफ्रीका को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो साउथ अफ्रीका ने सू किया था इसराइल को कि दैट उन्होंने जेनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन किया है। नाउ मूविंग ऑन। नाउ साउथ अफ्रीका, दिस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो लोग पिछले 3 डिकेड से साउथ अफ्रीका में रूल कर रहे थे 1994 से, अब लोग क्या हुआ है, इन लोगों के साथ में हुआ क्या कि ये लोग 2024 में जो इलेक्शंस हुआ था इसको ये लोग हार गए हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैड लॉस्ट दिस पर्टिकुलर इलेक्शन इन द ईयर 2024। दे वर इन द पावर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। सो बेसिकली अब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, अब ये लोग एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रहे हैं। इसके लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस याद रखिएगा, और नेल्सन मंडेला जो थे इसी पर्टिकुलर पार्टी के लीडर थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नाउ मूविंग ऑन। स्पोर्ट्स सेक्शन में हम लोग आते हैं। हार्ट ब्रेक फॉर इंडिया एंड छेत्री एज दे फेल टू सरमाउंट द कुवैत चैलेंज। नॉट सो बेसिकली सुनील छेत्री ने अभी अपना लास्ट प्रोफेशनल मैच खेला है अपने करियर का। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले अपना रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था। बेसिकली इन्होंने अब जाकर के अपना लास्ट प्रोफेशनल मैच भी खेल लिया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि दैट यूएसए हैज़ डिफीटेड पाकिस्तान इन द T20 वर्ल्ड कप। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, मतलब एवरीबडी नोज हाउ इट हैपेंस। यूएसए प्लेड बेटर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देन पाकिस्तान, दैट्स व्हाई यूएसए हैज़ वन। बट दिस इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर फॉर पाकिस्तान की इनको एक यूएस की टीम ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्रिकेटिंग टीम ने, एसोसिएट नेशन है, उन्होंने हरा दिया है पाकिस्तान को ना। बीसीसीआई ने 2024-2025 का जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेटिंग सीज़न है, बेसिकली 2024-2025 का उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है आज की न्यूज़ हेडलाइन में, न्यूज़पेपर में। तो we had a discussion of close to 42 minutes today. We had discussed like 42 minutes. आज हमने न्यूज़पेपर को डिस्कस किया है। एंड होपफुली अब आने वाले टाइम में, मतलब विद इन अ वीक और 2, न्यूज़पेपर में कुछ रेलेवेंट चीज़ें ज़्यादा कवर की जाएंगी। द रीज़न बिंग इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब न्यूज़पेपर में जो पेपर के जो मतलब एडिटोरियल्स हैं और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रोडक्टिव आएंगी, थोड़ा सा और ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाएगा। अभी तक क्या था, पिछले 2-2.5 महीने से इलेक्शंस की वजह से क्या था कि पूरा का पूरा जितना भी न्यूज़ स्पेस होता था या जितना भी स्पेस होता था वो किसको दिया जाता था, पॉलिटिकल न्यूज़ हेडलाइंस को। इसीलिए हम लोगों के लिए थोड़ा सा एक बेटर एक होप है कि हम आने वाले टाइम में कुछ अच्छी न्यूज़ आइटम्स को कवर करेंगे। सो इतना ही था आज के न्यूज़पेपर में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो एनालिसिस ऑफ द हिंदू बाय सक्सेस मंत्रा। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट होता है कहीं पे भी, देन डू पंच इन योर क्वेश्चंस। अगेन डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ अपने राइट्स के लिए नहीं। कहीं पे भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, देन प्लीज़ डू पंच इन योर क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आस्किंग क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल एंड कैरियर ग्रोथ। सो दैट्स व्हाई कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन। जिससे मौका मिले क्वेश्चन पूछने का उससे पूछ लीजिए, और स्पेशली तब पूछिए जब आपको समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेज वीडियो एनालिसिस ऑफ द हिंदू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक यू सो मच।